मैं थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल साउंड करूंगा, बट दिस इज हाउ आई एम। सिविल सर्विसेज में इतना पढ़ना होता है कि मन से अगर टूटे नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी जीवन में एक फिलॉसफी है कि कर्म ही पूजा है। आई डोंट होल्ड बैक थिंग्स बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस कि मुझे बंगला, गाड़ी, शोहरत, थिंग्स विल फ्लो इन एंड आई डोंट सी मनी एज एविल। टीचर्स वाला एटीट्यूड अभी तक मैंने चढ़ने नहीं दिया। ये जो बच्चों के साथ हमारा रिलेशन बन रहा है ना, ये इंटेलेक्चुअल रिलेशन बन रहा है। हमारा बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, द मास्टर इज द सोल। आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है और आपको लगता है कि सिस्टम खराब है और मैं सब बदल दूंगा। Welcome to another episode of Guwahati Connection. Our guest today is a graduate from IIT Roorkee. If you don't know him yet, it could be perhaps you're not associated with the field of civil services or you're not an aspirant. But for those aspiring to be cracking the UPSC or the APSC, this man is considered God. We have enough videos and content on the internet that supports this statement. We are very happy to have on our show Mr. Satyajit Kumar. Satyajit Kumar is currently teaching at a coaching institute in Guwahati, and the comments and the love that he has for him as a teacher is quite phenomenal. We decided to bring Satyajit Kumar onto our show so that you could see the other side of him, something that he's possibly not shared with you before. I'll see you at the end of the episode. Be sure to leave a subscribe on the G Plus YouTube channel. It really helps us grow, and we appreciate all the love that you've been giving us on our episodes. Welcome to the show. Thank you first of all for having me here. Right, perfect. Thank you. You could take out the time. I have been told that you keep very busy as a teacher, as a faculty. Yeah, that is true. But I'm mostly engrossed with a lot of things to do. But for such kind of events, I'm always eager to have. Always eager and available. Yes, and to be very honest, this is my first podcast. Achha. Never done such things in the past. The reason is very simple, because I'm not very comfortable in opening up with people. Opening up, because podcast mainly, as per my understanding, is about talking about personal lives. Right. And my interaction with people around me is mostly with respect to work, and I enjoy that. My professional life, I clearly, I completely am happy in that. Opening up about personal things is difficult a little bit for me, but since you have said it will be a fun session, let's see how it goes. All right, cool. I'll make sure that we have a holistic conversation, that every person, individual, student or non-student who watches this today understands that it is not just a teacher type character hai. I have seen a lot past. Good to have personal Satyajit Kumar today. Let's see how it goes. Right. Perfect. So मेरे को बताइए a little bit about your background, where you're from, how did you get up in teaching, the entire story, but in brief. देखिए, I come from a place छपरा in बिहार, और मेरा जो बचपन रहा है वो थोड़ा संघर्ष का ही रहा है. It had been slightly of economic struggle mainly because my father was in 4th grade job, police department. So, but those days I used to have this dreams of getting into IITs. Achha. Because I was told in my childhood days that if you get into IITs, you can solve all your family woes, financial woes. Luckily, I got help of some very good teachers. You must have heard about Anand Kumar sir. Mm-hmm. I'm blessed to have his support, his teaching in my life, and part of that Super 30 program also. Achha. Okay. And then I got into IIT. And when I reached IIT, one of the earliest interaction after my result with my father was, after the result, my father said, look, I don't know about IIT thing, what it is, because he was actually not aware about what IIT NEET or things, these type of things are. He said, I to know just one thing, that एक police officer होता है, IPS officer. He was also not very much, because he was in police. Right. I know SP, Superintendent of Police. He had heard about IPS, so he wanted me to be in civil services.
From that day only, with my whole heart and passion, I tried to get into services, civil services. Okay. Unfortunately, I could not for some reasons, but divulging into those reasons might appear excuse. So plainly, I would say I was not good enough, but maybe. Okay. And for that reason, maybe I could not get into the services. And that was a heartbreak moment for me. Because for me, I think it is a personal thing, but for anyone, fulfilling their parents' dream is one of the most important assignment, I would say, one could pick in his or her life. So that was a heartbreak moment. But for some medical reasons, I would not get into details. For some medical reasons, I had to pull out of my preparation in very early days. By the age of 26 only, I had to pull out because I was not able to write. So I consulted my doctors, and I was not very sure why it is happening, why I'm not able to write suddenly, why my handwriting has gone wayward. Okay. Was not very certain why it has happened. My doctor suggested if you focus on some calmness or you practice some calmness techniques or yoga and all, things may get better again and you might be able to write the exam again. So my first goal was to get able to write the exam again. Okay. At the age of 26. Which is when only extended time is available now for a lot of students. I understand how long was this ago? So I'm talking of 2016. 2016. So for that reason, I decided that I cannot sit and only wait when things will be perfectly fine and then I will start writing, and there were financial constraints as well. So I decided to teach side by side so that I may remain into my learning process also. So I had two options. Either I should start teaching for IIT JEE because I already had that IIT degree, or for civil services. And let me tell you very honestly, I was not interested in teaching for civil services. Okay. But then How did it happen then? I'm coming there. But I felt like I'm 26 only and I have age till 32. If in coming 2 years, maybe the way doctors have suggested, if I recover completely, then perhaps I would be able to write the exam again. And for that reason, I must stick into civil services teaching. That will allow me to stay with the preparation. So that is the reason why I started as a civil services teacher. And I was so young those days, no one would take me as a teacher. Fine. So that is the reason why for most of the places, I was not fit enough because I would look much younger for a teacher. So I'm fortunate enough that I was given an opportunity, and that opportunity came in Guwahati city. One of my friends stayed in Guwahati. He said, come to Guwahati, we'll look for some opportunity here. I came here. Fortunately, I got some opportunity to teach. I started teaching. Yeah. Fortunately or unfortunately, I could never recover completely. Though I had decided not to, and I'm for the first time opening up about my medical conditions. But fortunately or unfortunately, I could never recover completely from that limitation. Okay. But the good thing is that when I'm about to write on the board, I use different set of muscles. So I don't find any inhibitions or limitations while writing on the board. But while writing on the paper, I still find some difficulties. But since then, I continued into the teaching process, civil services teaching. Till day, I think how things happened, and maybe it could have gone otherwise. Right. Maybe I could have, or perhaps I should have been into IIT JEE teaching. There is a reason why You keep questioning yourself. Kya hota, kahan hota, kaise hota. If I'm not wrong, you have graduated from IIT Roorkee, right? As an IITian, then you ended up not pursuing a job. Yeah, I worked for Reliance Industries for 2 years. So I was in Mumbai in their corporate office, Navi Mumbai. And that too, look, I was very much motivated to get into sales services. Acha. But as I told you, financial constraints the, the plan was clear. Work somewhere for at least 1 or 2 years, have some backup, cushion, and then get into preparation. Acha. After 2 years, I left my job, started full-time preparation. So I worked for 2 years. The only place I worked for was Reliance Industries. So 2 years you made a cushion for yourself, a financial cushion. You moved, you started preparing and then started teaching again. You built enough cushion for yourself that
You did not have to rely on a job. So corporate paid you really well. Yeah, that was a handsome paying job, that I must concede. So is it, so money is not a factor for you? Is it anywhere in your conversation, in your goals कि मैं पैसे देख के decision लेता ही नहीं हूँ? And that would not be true to say. Look, that would be dishonest to say that money is not a factor. But yes, beyond a certain limit, money stops making sense. Okay. But I've already told you that in childhood days, my first concern was to do away with the financial constraints my family is facing. So to say that money does not make sense to me would not be fair. आप गुवाहाटी आए, आपने कोचिंग किया, आपका जो कोचिंग का सफर था वो अब तक कैसा रहा है? कोचिंग मतलब पढ़ाने का ऑफ यू एज अ टीचर, वो सफर कैसा रहा है? सच बताऊं तो शानदार. एंजॉय बहुत मैं करता हूँ. जितना रिस्पेक्ट यहाँ मिलता है स्टूडेंट से, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, द काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड यू गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक इतना आपको कहीं पे भी भारत में स्टूडेंट से मिलेगा. देखिए, ये कहने की बात नहीं है कि टीचर का रोल जो है वो लिमिटेड ही है. अदरवाइज तो अचरेकर साहब ने 10 तेंदुलकर बनाए होते. देयर इज जस्ट वन सचिन तेंदुलकर, ही माइट हैव कोच्ड 100 स्टूडेंट्स. तो टीचर का रोल लिमिटेड है. बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, स्टूडेंट्स हैव टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ओनली दे गेट सक्सेसफुल हु पुट हार्ड वर्क. बट जब कामयाबी मिलती है बच्चों को और वो आते हैं और वो पूरा का पूरा क्रेडिट जिस ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि बस कहने के लिए, जिस मतलब श्रद्धा से, जिस एलिजियंस से वो देते हैं जी, वो बड़ा अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि ज़्यादा है, हाँ, बट रिस्पेक्ट तो मुझे अच्छा लगता है. वो वॉन्ट बी. तो मुझे लग रहा है आप जानते हैं मेरा अगला सवाल क्या है. क्या आप जानते हैं आप एक इंटरनेट फिनोमिनन है? एक छोटे मोटे फिनोमिनन तो पक्का है. डू यू नो अबाउट दैट? टू बी ऑनेस्ट, नो. नहीं? ओके, मैं आपके लिए एक छोटा सा क्लिप बजाऊंगा और आप इसको देखिएगा एंड देन यू लेट मी नो ऑफ इफ यू हैव सीन दीज वीडियोस ऑफ योरसेल्फ. ना लिखना कभी तुम मेरे रंग रूप चाल के बारे में, तुम लिखना तो लिखना मेरे ख्वाब, मेरी उड़ान. ऐसे आपके कम से कम 300 या 400 या 500 वीडियोस हैं. Do you know that you are an internet phenomenon and people love you on the internet like this? अब मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरे जीवन में सच में काम के अलावा कुछ और है ही नहीं. और जितना काम, मैं हैप्पी फॉर दैट. ऐसा नहीं कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, बट सुबह उठने से लेकर के शाम रात बेड तक जाने तक आई कीप ऑन वर्किंग ऑनली. और मेरा वर्क वही है, पढ़ाना, नोट्स प्रिपेयर करना, न्यूज़पेपर एनालिसिस करना, 3-3, 4-4 अखबार में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन प्रिपेयर करना, आंसर चेक करना. तो इसके लिए मैं एक कोशिश करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, दूर रहो इंटरनेट से, इतना ही इस्तेमाल करो. सॉरी टू से आपके पॉडकास्ट के लिए. हाँ, तो आप बोलते हैं बच्चों को इंटरनेट से दूर रहो, मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड मत करो, ऐसा है क्या? बिल्कुल. तो अगर मुझे पता लग जाए जिस बच्चे ने कहा है तो ये अपलोड किया, तो मैं उसको सच में यही बोलूँगा, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज. बट ऐसे बहुत वीडियोस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वीडियो. ये ऐसे बहुत बच्चे हैं हु रियली पुट रेड हार्ट्स, ग्रीन हार्ट्स एंड रिस्पेक्टफुल इमोजीज, नॉट इन एन इनअप्रोप्रिएट वे. बहुत इज्जत देते हैं. इस इज्जत से आपको क्या फील होता? हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रेशर? डू यू फील अ सर्टेन प्रेशर एट दैट पॉइंट? देखिए, प्रेशर तो महसूस होता है कि जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो इसीलिए तो दे रहे हैं कि कल होकर के हम इन बच्चों का जीवन और बेहतर करेंगे. उम्मीद है ना उस रिस्पेक्ट में. अदरवाइज हमारा कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं, राइट? कि आउट ऑफ दैट वन इज पेइंग रिस्पेक्ट. एक उम्मीद भी जुड़ी है और उस उम्मीद के कारण ही एक दबाव बनता है. एंड दैट फोर्सेज मी टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड ऑन डेली बेसिस. कि अब जैसे रिजल्ट आया हाल फिलहाल में, मुझे नहीं लगता आप कहीं पे भी मुझे सेलिब्रेट करते हुए देखोगे. ऐसा नहीं कि आई एम नॉट हैप्पी, बट अगले राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है. उनको भी तो हेल्प करना है. और वो दबाव है. जो बच्चे खुश हैं, जो अगले साल एग्जाम दे रहे हैं, वो इसीलिए तो खुश हैं कि सर लोग हमारे लिए भी उतनी ही मेहनत करेंगे जैसे इस बार के स्टूडेंट्स के लिए की है.
तो दबाव है, बट साथ ही साथ बड़ा अच्छा भी लगता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। आप खुद सोशल मीडिया में है? मैं सोशल मीडिया में जो भी मेरे प्रोफाइल्स हैं, दे आर नॉट रन बाय मी। अच्छा। हम कैमरा जगह पे कर देंगे और बोलेंगे देखो कौन रन करता है, ऐसा है क्या? बट व्हेन यू से नॉट रन बाय मी, यू आर प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंडिविजुअल. इफ आई टाइप योर नेम, आपका नाम आएगा, बट आप बस मैनेज नहीं कर रहे हैं. तो सर हुए ना आप सेलिब्रिटी, है ना आपके पीछे एक पीआर और मैनेजमेंट टीम. देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत काम करना भी बाकी है। अच्छा. बहुत काम बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है, और सिर्फ इस फील्ड में नहीं करना है। एक मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहूँगा आज, अगर वक्त मिलता है तो, वो ये भी है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में तो लिमिटेड सीटें हैं। उन बच्चों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा. उनको तो हमेशा यही लगेगा कि दे आर नॉट गुड और दे आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, राइट। उनके जीवन में जो हताशा है, वहाँ से उनको कौन उभारेगा? तो मुझे लगता है उस डायरेक्शन में भी मुझे काम करना है। सिविल सर्विसेज को मैं, यकीन मानिए, मैं एक सिविल सर्विसेज के लिए एक प्रोफेशनल सपोर्ट देता हूँ, बट आई डोंट इंटेंड टू ग्लोरीफाई इट, बिकॉज इफ़ यू सी द नंबर्स, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वाला अगर आप डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ओवरऑल ये हैप्पीनेस के बजाय पेन ज़्यादा दे रहा है। बिल्कुल. बट ठीक है, मतलब भारत में हमारे बच्चों के अंदर इतना शौक है कि सिविल सर्विस में जाना है, देश की सेवा करनी है। बिल्कुल, सिविल सर्विस में जाने के बाद आपको क्या होता है कि आपको इंसान बनने का मौका मिलता है। अच्छा. इंसान बनने का मौका इन द सेंस कि यू राइज फ्रॉम द पेटी इशूज़। अभी कैसा, आपके पास कितने भी पैसे हो, दूसरों को सर्व करने से पहले यू थिंक ट्वाइस, हेल्प करने से पहले यू थिंक ट्वाइस कि कल मेरे पास नहीं रहा था। बट सिविल सर्वेंट्स का कैसा है कि उनके और उनके परिवार का पूरा ध्यान रखेगी सरकार जीवन भर। आपको गरीबी की चिंता नहीं करनी है। हाँ, आपको लग्जरी नहीं मिलेगा, गरीबी की चिंता नहीं करनी है। अब आप दूसरों के लिए काम कीजिए, और यही तो होता है इंसान होना। टू बी ह्यूमन इज टू वर्क फॉर अदर्स, टू फील अदर पेन, राइट. अदरवाइज तो अपने शरीर पे तो चोट लगे तो जानवर भी रोता है। इंसान वो जो दूसरे के दुख को समझ पाए, उसके लिए कुछ कर पाए। तो सिविल सर्विसेज का तो फायदा है ही, वो आपको इंसान बनने का मौका देता है। ये पावर वगैरह ये सब सुपरफिशियल बातें हैं, जो जेन्युइन चीजें हैं वो ये हैं। बट उन बच्चों का क्या जिनको मौका नहीं मिला? मेरा कंसर्न उनके लिए भी है, जो बहुत शौक रखने के बाद भी नहीं जा पाए। तो हमें एज ए सोसाइटी ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करना है कि जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हताश ना हो। आपने बोला द हैप्पीनेस नंबर की 10 students are appearing, only 2 get selected, 8 are disappointed, but that is a part of natural. Does it not become a natural theory? Not everyone can be Ichiban, not everyone can be number one. मेरा इसमें एक सोच है, जब आप प्रॉब्लम गिनाते हैं तो सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए आपके पास। कि मेरी समझ ऐसी है कि एंटरप्रेन्योरशिप में नो वन इज़ अ फेलियर। वहाँ पे क्वांटम है हायर एंड लोअर सक्सेस का, लेसर सक्सेस का, और नो वन इज़ अ फेलियर। तो जैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप के एग्ज़ाम हो सकते? और जो टॉप के 100 लोग होंगे उनको सरकार अपने तरफ से फैसिलिटेट करे। अच्छा. उनको इंडस्ट्रियल सेंटर्स पे, इंडस्ट्रियल टाउन में इन्वेस्टमेंट भी दे, जगह भी दे, क्योंकि उनके पास बेहतर आइडिया और बेहतर बिजनेस एक्यूमेन है, स्किल्स हैं। बट बाकियों के लिए भी अगर उस डायरेक्शन में वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर पे भी तो वो सेंस है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स व्हाट? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। जब इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर, प्रॉब्लम्स आर लाइक लॉक्स, और अगर ताले हैं तो उनकी चाबियां भी होंगी कहीं ना कहीं। बारिश होगी, पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर काटते हैं, कॉकरोच घूमते रहते हैं। हर छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर बेहतर सॉल्यूशन हो, और उन सॉल्यूशन के लिए क्या है, आपको थोड़ा सा बैठ करके सोचना है। जो बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, वो इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। तो अगर बिजनेस का एग्जाम हो, थोड़ा हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन है, बट अगर ऐसा हो, टॉप के लोगों को सरकार सपोर्ट करे, बाकी के लोगों को थोड़ा कम सपोर्ट करे, और उनको इनका महत्व दिखाए, तो तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। तो सिविल सर्विसेज के अलावा ये भी हो। चलिए, मैं इसमें दो तरफ के सवाल है। एक है
यू आर एनकरेजिंग कि गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज में ज़्यादा इन्वेस्ट हो और पूरे सर्विसेज के मॉडल को ज़्यादा रिफाइन करे. इज दैट वन ऑफ द टेक अवेज कि आप बोल रहे हो जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज है कि सब तरफ से आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट बिकॉज आई विल हैव अ सिक्योर जॉब. दैट इज अनदर माइंडसेट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल टेक इन विथ. आप बोल रहे हो कि सरकार 100 को नहीं सिलेक्ट करके 1000 को करे, बट डज इट इन अ टियर्ड पैटर्न, राइट? थोड़ा मैं अलग कह रहा हूँ, दो अलग मॉडल ही हों. जिनको सिविल सर्विसेज में जाना है वो सिविल सर्विसेज में जाएं, बट क्लैरिटी हो कि क्यों जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, सेवा करने के लिए. ठीक है. अब इस पे सवाल कि क्या आपको लगता है व्हेन पीपल अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज आर दे डूइंग इट सेवा करने के लिए? सेवा भाव से आदमी जाता है सर्विसेज में. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो ये भावना रखते हैं. वो जाने के बाद वो फीलिंग बदल जाती है. जब सर्विसेज में चले जाते हैं तो हमारा समाज इस तरीके से बिहेव करता है जैसे दे हैव बिकम एलीट, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगती है. वो टच मी नॉट वाला एटीट्यूड, एलिटिज्म, वो आने लगता है. आई डोंट वांट टू मिक्स विथ. आप सोचिए ना, सिविल सेवा, लोक सेवा, लोक में भी किसकी सेवा करेंगे आप? जो सबसे पिछड़ा है, अंत्योदय है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बट आप उनके साथ बात भी नहीं करना चाहते वंस यू गेट इनटू द सर्विसेज बिकॉज यू आर अ साहब, राजा. और वो कौन फील करा रहा है? हम ही लोग तो फील करा रहे हैं इनको. लोग की सेवा के लिए लोगों से मिलना जुलना तो पड़ेगा. तो भावना पहले होती है, बाद में मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती है. ठीक है. आपको ऐसा भी लगता है क्या सिविल सर्विसेज के लिए टीवी सीरीज, ओटीटी मूवीज ने थोड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ है ज़्यादा? देखिए, ग्लोरीफाई किया है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है. मैं बस ये चाहता हूँ कि बस सिविल सर्विसेज को ग्लोरीफाई ना करें, बाकी चीज़ों को भी रखें. इससे क्या होगा कि अगर सिविल सर्विसेज में नाकामयाबी मिलती है तो स्टूडेंट को ये ना लगे कि अब उसके पास कामयाब होने का कोई और अवसर है ही नहीं. अच्छा. और भी चीज़ें हैं, यस, और भी चीज़ें हैं जहाँ से वो कामयाब हो सकते हैं. अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शाहरुख खान ने कहा था कि ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, राइट, एंड ही फेल्ट लाइक कि जब उनको कुछ इंजरी हो गई तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, तो उनको लगा कि दिस इज एंड ऑफ स्टोरी, नाउ ही कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. बट यू सी द काइंड ऑफ सक्सेस ही हैज अटेन्ड इन हिज लाइफ. राइट. तो ऐसे ही सिविल सर्विसेज के अंदर भी आप सोचिए ना, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं और कामयाब कितने हो रहे हैं? 1000. सक्सेस रेशियो देख लीजिए. वही हाल स्टेट सर्विसेज में भी है. 70,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं 200-300, राइट. लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको इतना नॉलेज हो जाता है कि अगर बस वो दिल से टूटे नहीं, सिविल सर्विसेज में इतना पढ़ना होता है कि मन से अगर टूटे नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं. स्टेट सर्विसेज में भी इतना पढ़ना होता है. एपीएससी और यूपीएससी का सिलेबस जनरल स्टडीज में सेम ही है और क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वही है, पर इतना पढ़ना होता है, इतना टफ कंपटीशन है कि उसके लिए बच्चे इतना रिफाइन हो जाते हैं उस पूरे प्रोसेस में कि आफ्टर दैट इवन इफ दे डोंट गेट इनटू द सर्विसेज दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू मिरेकल्स. बस उनका वो सेल्फ बिलीफ नहीं टूटना चाहिए कि दे आर गुड फॉर नथिंग. मैं बस ये चाहता हूँ. और भी रास्ते हैं. ये अगर चुन लिया आपने ये रास्ता, ईमानदारी से तैयारी करो, आप नाकामयाब नहीं होगे. ठीक है. कामयाबी का बस एक नैरो डेफिनेशन नहीं होना चाहिए. एक फैमिली प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी में. यूपीएससी, एपीएससी, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में फैमिली चाहती है कि मेरा बेटा अफसर बने, लाल बत्ती वाली गाड़ी हो. लाल बत्ती तो खत्म कर दिया मोदी. हो गई है, लेकिन रास्तों पे तानाशाही खत्म हुई नहीं है सर. वो लाल बत्ती का एक शौक है. गाड़ी आएंगी, साहब बोलेगा, घर में सब कुछ ध्यान रखा जाएगा. बियॉन्ड दैट अ लॉट ऑफ टाइम किड्स मे नॉट ऑलवेज बी इंटरेस्टेड. डू यू गेट किड्स लाइक दैट? डू यू हैव स्टूडेंट्स लाइक दैट? तो शायद घर के प्रेशर में आए हैं, खुद 100% कमिटेड नहीं है. देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही कर रहे हैं. ये इससे ज़्यादा गलत आप और कुछ नहीं कर सकते कि जब आप एक काम कर रहे हैं बट उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं.
अगर मुझसे आप ईमानदारी से पूछिए, आई विल बी वेरी ओपन, मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि मेरा पैशन जिस फील्ड में है मैं उसी डायरेक्शन में बस काम करूँगा। मेरा मानना है कि काम काम होता है, और कोई भी काम आप कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको पैशन, अगर आप इफ़ यू आर अ पैशनेट पर्सन यू विल फाइंड दैट पैशन टू डू दैट वर्क ऑनेस्टली एंड विद पैशन। तो ये बच्चे, जब मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, कहते हैं सर पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मुझे इसमें लगा दिया। पर मैं पूछता हूँ तो और क्या करना चाहते हो तुम, तो उसका भी जवाब नहीं है। दिस इज द वर्स्ट अ यूथ कैन डू टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। And where does the youth find direction there? Do you think home is responsible? Do you think mentors are responsible? यस, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हम तो हैं ही। तो मेरा तो बस यही कहना है कि अगर आप आ गए हो इस फील्ड की तैयारी में तो पूरी ईमानदारी से करो, कोशिश ही कामयाबी है। अगर ईमानदारी से कोशिश कर ली, मैं आपको गारंटेड तौर पे कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा नाकामयाब नहीं होगा। अब यहाँ पे कामयाबी का डेफिनेशन थोड़ा सा ब्रॉड है, उस लिस्ट में नाम आना, उस होली लिस्ट में नाम आना, वो एक बात है। बट कामयाबी का मतलब कि आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ रहा है, आप जीवन अपने शर्तों पे जी रहे हैं, वो आप 100% कामयाब हो गए। ये कहना कि अरे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन टू, इफ यू हैव टेकन अप दिस एक्टिविटी, put 100% behind it, 100% you will become successful. Achha. So this exam teaches you to be capable. Preparing for this exam teaches. किसी भी काम को आप ईमानदारी से करोगे तो you become capable only. बट इस एग्जाम में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ठीक है, इस बार के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट द रिजल्ट्स दिस टाइम, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, द नंबर्स दैट हैव कम, द स्कोर्स दैट हैव कम, द क्वेश्चंस दैट हैव कम? लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस ईयर्स एग्जाम। देखिए, क्वेश्चन एक चीज़ अच्छी है कि यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल स्टेट सर्विसेज में भी एग्जाम में प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आसाम की अगर बात करूँ यूपीएससी से कंपेयर करूँ तो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन की अच्छी बात क्या होती है कि वहाँ पे रटी रटाई चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली। तो मैं मेंस की बात करूँ या प्रीलिम्स की बात करूँ, बिल्कुल यूपीएससी लेवल की बात पूछ रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो बच्चे स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी यानी कि यूनियन लेवल पे भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अंतर बस एक है कि एक स्टेट सर्विसेज में ऑप्शनल पेपर नहीं है, वहाँ पे ऑप्शनल पेपर होता है यूपीएससी में, एक एक्स्ट्रा उनको प्रिपेयर करना होता है। तो क्वेश्चन पैटर्न की तो बात ये हो गई। रिजल्ट्स की अगर बात की जाए, अब रिजल्ट अगर आप मेरे खुद के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आई वुड एक्ट इन हम्बल फैशन। मेरा जेन्युइनली ये मानना है कि रिजल्ट्स तो बच्चों का है, हमारा तो बस थोड़ा सा सहयोग है, सपोर्ट है। अब उसके बाद वो क्रेडिट देते हैं, वो अच्छा लगता है, आई वोंट डिनाई दैट, यस ऑफ कोर्स, लेकिन मेहनत जो कर रहा है वही कामयाब हो रहा है। व्हाट इज इट दैट हैज मेड यू टीचिंग फिनोमिनन? मैं ऐसा खुद से बोल रहा हूँ या हमारे जो ब्रीफ रिसर्च करने का हमको टाइम मिला, सर सत्यजीत सर इज नॉट जस्ट अ नेम, सत्यजीत सर इज एन इमोशन, ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दैट यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग or different for that matter, that students are considering you to be beyond just a person in the classroom? देखिए, इस सवाल का बेसिक easier format है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं where you think you are doing something differently or correctly? देखिए, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ अपने काम से, मैं काम को बस काम करता हूँ। तो मेरी जीवन में एक फिलॉसफी है कि कर्म ही पूजा है, और वहाँ क्लास में जाकर के मैं बिल्कुल ओपन हो जाता हूँ। जैसे राइट नाउ ऑल्सो आई वाज स्लाइटली हेजिटेंट टू बी ऑनेस्ट बिफोर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मैं खुल जाता हूँ, खुल के बात करता हूँ। ठीक, आई डोंट होल्ड बैक थिंग्स बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस कि मुझे बंगला, गाड़ी, शोहरत, थिंग्स विल फ्लो इन एंड आई डोंट सी मनी एज एविल, आई एम नेवर सेइंग दैट, बट आई फोकस ऑन द प्रोसेस। ओके, अच्छे से करूंगा तो सब अच्छा ही होगा, और अच्छे से करने का मतलब ईमानदारी से करना। बच्चा आया है, उसको आप खुल के पढ़ाइए। तो मैं बिल्कुल मन से खुल के ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। हमने 6 साल पहले से जब पढ़ाना शुरू किया तब से मेरा एटीट्यूड यही है। धीरे धीरे रिजल्ट्स आए, थोड़ी अच्छे रिजल्ट्स आए स्टेट लेवल पे, तो
आप कह सकते हैं कि थोड़ा फेम आया, आप कह सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं फिनोमेना ऑल, दो आई डोंट वांट दैट टू गेट इनटू माय हेड बिकॉज आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट फ्रॉम हियर ऑन। बट यही है कि ईमानदारी और खुल के पढ़ाना, और जो है मेरी एबिलिटीज है, हमारी टीचर्स की एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि उनको एक्टिंग करनी पड़ती है कि उनको सब कुछ आता है। अच्छा, मैं ये नहीं करता, मुझे सब आता है। द मोमेंट यू गिव अप दैट, हाँ तो आपका बर्डन खत्म हो गया, हाँ और उसके बाद यू ऑल्सो बिकम ए स्ट्रगलर लाइक एनी अदर स्टूडेंट। चलो यार ये जवाब लिखते हैं, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिखें तो क्या करते हैं। सो आई ट्राई टू मेक इट अ क्राउड वर्क, ओके आई ट्राई टू एंगेज माई स्टूडेंट्स, आई नेवर एक्ट एज अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। देखिए लगातार 6 साल 7 साल से एक ही चीज़ें पढ़ा करके ऑफ कोर्स यू विल गेट बेटर, राइट। पर जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हम तब तो स्टूडेंट ही थे, बट आई कंटिन्यू टू मेंटेन दैट माइंड सेट कि मुझे कुछ आता नहीं है यार, करके देखते हैं। जो है ये प्रश्न है, थोड़ा मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ आपके तुलना में, बट टीचर्स वाला एटीट्यूड अभी तक मैंने चढ़ने नहीं दिया है, शायद से ये फायदा दे रहा होगा। हो सकता है, ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अभी एक और ऑब्जर्वेशन है, ये सुपरफिशियल मत समझिएगा ये, बट ये है फिजिकल। मेनी टाइम्स पीपल रिस्पॉन्ड टू पीपल विद गुड पर्सनैलिटीज एंड फिजिकल अपीयरेंस। डू यू अग्री? दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, सैडली ट्रू। No, it does not have to be sad. It can be honest. I mean, if you exude personality, अपर आपके बोलने के ढंग में, चाल में कॉन्फिडेंस है, people will respond to you. बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान की सोचने के तौर तरीके ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए, अच्छा, ना कि वो कैसा दिखता है या कैसा बातचीत करता है। अच्छा, क्या आपके लिए do you have that going for you? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मतलब क्योंकि मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं वो मुझे नहीं, मेरी सोच से थोड़ा मोटिवेटेड हैं। अच्छा, तो इट्स नॉट जस्ट दैट द वे आई कैरी माई सेल्फ, बिकॉज अब यकीन मानिए आप, बस मैं आज थोड़ा सूट वूट पहन के आया हूँ, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज तो थ्रू योर टॉक्स व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग योर इनर सेल्फ, right? then people start knowing you and then they get connected with you in real sense. Otherwise जिस connection की personality तो दोनों लेवल की है ना, intellectual and just superficial या physical one. If I'm not wrong, you are talking about the physical one या superficial one. मैं बात कर रहा हूँ intellectual one की। ये जो बच्चों के साथ हमारा relation बन रहा है ना, ये intellectual relation बन रहा है, और मेनली ये रिलेशन मैं देखता हूँ बनता है आफ्टर अ टॉपिक, अ सब्जेक्ट दैट वी टेक, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। वहाँ पे तमाम इन मुद्दों पे चर्चा होती है, क्या होना चाहिए जीवन का मकसद, और फिर मैं देखता हूँ कि बच्चों के साथ एक जुड़ाव जो है वो अलग लेवल पे पहुँच जाता है। अच्छा, आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताइए। योर टाइम अबाउट योर प्रिपरेशन, what were you doing differently, or what maybe what you take away from that learning and give to your students today? देखिए, जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, बट उसमें भी कोई एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट बनने लगता है धीरे धीरे। मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से था, बट जब मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई शुरू की तो फिलॉसफी और अलग अलग फिलोसोफर्स को पढ़ना ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा, फिलॉसफी। हाँ, तो फिर मुझे समझ आया कि फिलॉसफी इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उससे कुछ आपको मिलेगा। इट इज़ नॉट अ मीन्स टू गुड लाइफ, इट इज़ इटसेल्फ ए गुड लाइफ। अच्छा, आप जब फिलोसोफर्स कभी कभार मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए ज़िंदगी में, इतनी बड़ी बात कह दी, क्या बात कह दी आपने सर। रोसो को मैं पढ़ता हूँ, मान लीजिए वेस्टर्न फ्रेंच फिलोसोफर, तो कई बार लगता है क्या बात कह दी। तो इस तरीके के आप जब हैं, मेरे कुछ एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स हैं वो काफ़ी मेरे फेवरेट हैं। मुझे काम से वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अगर मुझे वक्त मिले तो मैं अपने पढ़ाई के दिनों से जो एक हैबिट कंटिन्यू करना चाहूँगा वो है फिलोसोफर्स को पढ़ना। ओके। आपकी कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर रूटीन एंड योर डेली शेड्यूल? मेरे को बहुत ही ब्रीफली बताया गया था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आप मैदा शुगर बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, दैट यू आर अ अर्ली बर्ड, यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पेपर, XYZ में बाकी सब कुछ बोल नहीं दूंगा, बट फिर भी फ्रॉम यू आई वॉन्ट टू हियर योर रूटीन, योर डे इन लाइफ, व्हाट इज इट लाइक? देखिए, मैं अपना रूटीन खुल के बात करेंगे, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैसेज तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को भी मिले। हमारा बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, द मास्टर इज द सोल।
इस इंस्ट्रूमेंट को जितना हम ख़राब करेंगे उतना वो इनइफेक्टिव तरीके से काम करेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी विराट कोहली इज़ विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ रोनाल्डो, means so much successful, reason being they have maintained themselves or their fitness to that extent, right? तो फिजिकल फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट। तो मैं कुछ भी ऐसे चीज़ें जंक फूड खाना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे पढ़ना है पढ़ाना है तो आई नीड टू रिमेन इन अ फिट स्टेट, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, एंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स आर रिलेटेड। सुबह उठता हूँ मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 घंटा मेरे साथ मिले, सो दैट आई नो माई सेल्फ। ओके, कि हम लोग खुद को ही नहीं जानते, हम क्या चाहते हैं जीवन में, क्यों काम कर रहे हैं, इन प्रश्नों का जवाब भी मिलना चाहिए। तो मैं सुबह उठ करके थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, फिर कुछ मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, बट साथ ही साथ मैं थोड़ी खुद से भी बातचीत करता रहता हूँ। अच्छा, इससे खुद को जानने का मौका मिलता है। कैसी बातें करते पूछ सकते हैं? क्या चाहिए तुमको सत्यजीत कुमार, क्यों काम कर रहे हो तुम, ये सबसे पहला प्रश्न है। कि आज तुमने ये पूरे दिन का इतना शेड्यूल बना रखा है और 6 महीने बाद इतना करना है, ऐसे करना है, ये टारगेट्स क्यों करना है तुम्हें, क्यों, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। और फिर इसका जवाब अपफ्रंट नहीं मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। कि इससे कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनका जीवन बेहतर हो रहा है, इसलिए करना है, अदरवाइज जीवन का मकसद क्या है। राइट। तो वो जो सुबह के 2 घंटे हैं वो मेरे फेवरेट आवर्स हैं। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। मैं जिम वगैरह जाना नहीं प्रेफर करता, क्योंकि वो चीज़ें जो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी को हैम्पर करेंगी वो नहीं हो सकता मुझसे। तो 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ा योगा मेडिटेशन कर लिया, चीज़ें मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा बातचीत करता रहता हूँ खुद से, और वो 2 घंटे मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। अच्छा, फिर जब क्लास चले आए तब तो स्टूडेंट्स और उनकी समस्याएं, वो सब अपनी समस्याएं हो गई। और यूजुअली क्लास कैसा टाइम पे खत्म होता है? आर किड्स इंटरेक्टिंग विद यू आफ्टर आवर्स? आर स्टूडेंट्स स्टिल कमिंग विद यू? बिल्कुल बिल्कुल, वो इंटरेक्शन चलता ही रहता है। वो चलता ही रहता है। और मैं तो बहुत बार फोल्डेड हैंड से कहता हूँ कि देखो प्लीज़ मुझे मैसेज ना किया करो व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाता हूँ। और आप भी क्लास में बात करो, जो टच मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन में है, या फिर क्लास में ही जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं, वो व्हाट्सएप में वो बात मुझे आती नहीं। मैं थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल साउंड करूँगा, बट दिस इज़ हाउ आई एम। तो मुझे वो इंटरेक्शन, क्लास के बाद भी बात करो मुझसे, पूछो, प्रश्न पूछो, डाउट पूछो, चर्चा, जनरल बातचीत करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्लास कब ख़त्म होती है उसका कोई टाइम नहीं। हम लोग घर रात को 9:30 बजे जाते हैं। अच्छा, ठीक है। क्लास में, बैचेस में सब बच्चे सेम नहीं होते। कैन वी अग्री ऑन दैट? डेफिनेटली अलग अलग तरीके से सेम नहीं है, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। व्हेन यू फाइंड सम स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा पोटेंशियल, do you think additional guidance to them helps, and do you as a teacher, professor, go out of your way in helping them? Or we can take it the other way also. When there is a weak link in your batch, do you go out of your way? Does management go out of its way and say कि यार तुम्हें थोड़ा एडिशनल गाइडेंस की ज़रूरत है? देखिए जो दूसरा वाला अप्रोच है मैं उसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और मेरी पूरी टीम भी मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा ध्यान में रखती है। अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चों को तो हम सपोर्ट करते ही हैं, बट हमारी कोशिश रहती है कि हमारा टीचिंग डेमोक्रेटिक रहे। डेमोक्रेटिक इन द सेंस कि इट शुड बी ऑफ यूज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि जो भी बच्चा मेरे पास आया है इस उम्मीद में आया है कि मैं उनके लिए या हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे। तो अगर वो लैग बिहाइंड कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है उस गैप को प्लग करना। तो आपको ऐसे पढ़ाना है कि अच्छे बच्चों से यहाँ मेरा मतलब है कि गुड पोटेंशियल साउंड इंटेलिजेंट बच्चों का टाइम भी ना खराब हो, और जो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं उनको भी चीज़ें समझ आए। अच्छा, इसीलिए बहुत सारा होमवर्क करके आना पड़ता है। हम लोग बहुत सारा प्रेजेंटेशन पीपीटी बना करके आते हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग भी, कि एक बार में समझ आए लेकिन सबको आए। बट जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा टाइम देते हैं हम लोग आफ्टर द क्लास। क्योंकि अगर आप पूछे कि सर दोनों में ज़्यादा प्रेफरेंस आप किसको देंगे, तो मैं उसको दूंगा जो थोड़ा पिछड़ रहा है। मेरी जिम्मेदारी है सबको बराबर मौका देना, वो मेरे पास उम्मीद से आया है। ठीक है। और आपको लगता है सिविल सर्विस एज एन एग्जाम इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्जाम? नो। नो। ठीक है।
Can I hear more on that? मैं बस डेटा पे बात करूँगा. आप देखिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं. तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, इन्हीं दो मेन भाषाओं में स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं. आप देखिए कितने प्रतिशत इंग्लिश मीडियम से क्लियर करते हैं और कितने हिंदी मीडियम से क्लियर करते हैं. फाइन. हिंदी मीडियम वालों की संख्या बहुत कम है अच्छा. एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम. रीज़न बीइंग, मतलब मैं इसको एम्पिरिकल ग्राउंड पे नहीं कह सकता हूँ, फैक्चुअल ग्राउंड पे नहीं कह सकता, बट जो बच्चे बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, शायद से वो इकोनॉमिकली भी बहुत बेहतर परिवार से हैं. उनको वो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला स्टार्टिंग से, और वो जो कल्चरल कैपिटल एडवांटेज उनको स्टार्टिंग से मिल रहा है, वो फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेकअप कर पाना उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा बैकवर्ड सोसाइटी से आ रहे हैं, हिंदी माध्यम में पढ़े हैं, उनके लिए वो कवर कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है. साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के फिर रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं, बुक्स वगैरह बहुत हैं पढ़ने को, हिंदी मीडियम में फिर नहीं है. एंड सेम इज ट्रू राइट इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट सर्विसेज. इंग्लिश मीडियम तो यही अपने आप में बताता है, राइट. एलिटिज्म तो पहले से ही है. इट इज़ नॉट फेयर ओपन. अब देखिए सीसैट का एग्ज़ाम है, जो बच्चे सीसैट में उतने अच्छे नहीं हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो पहले स्टेज में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है. बट आफ्टर सेइंग दैट मैं ये भी कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न बनाना भी नामुमकिन है जो पूरी तरीके से फेयर हो. ओके, करेक्ट. ये लगभग नामुमकिन है, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल वर्ल्ड. दैट वुड बी एन यूटोपियन आइडिया टू से कि आई विल क्रिएट सच अ प्रोसीजर दैट इट विल बी अ फेयर सिस्टम फॉर एवरीवन. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड आई वुड से कि हमारी जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेट लेवल पे एपीएससी या यूनियन लेवल पे यूपीएससी, वो काफ़ी हद तक उस डायरेक्शन में काम कर रही हैं. बट जस्टिस कैन नॉट बी अटेन्ड इन वन गो. करेक्ट. It can be attained by doing away injustices in incremental manner. ठीक है. और वो काम चल रहा है. चलिए, ठीक है. आप सिस्टम को बहुत बिलीव करते हैं, आपको लगता है द सिस्टम इज पुट इन इफेक्ट टू इम्पैक्ट चेंज. अ लॉट ऑफ पीपल फील अदरवाइज. देखिए ये काफ़ी हद तक एज पे भी डिपेंड करता है. इसको मोटा मोटा प्रो सिस्टम एंड एंटी सिस्टम आप लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स बोल सकते हैं. व्हेन यू आर ऑफ वेरी यंग एज ना, यू आर नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स द लेफ्टिस्ट अप्रोच, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है और आपको लगता है कि सिस्टम खराब है और मैं सब बदल दूंगा, और सब लोग बेवकूफ़ हैं, बेईमान हैं या लेजी हैं, क्योंकि आपके अंदर तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना. आप 17, 18, 19, 20 साल के यूथ हैं. तो एंटी सिस्टम अगेंस्ट सिस्टम वाली टेंडेंसी मेरी भी थी जी. बट जैसे जैसे आप थोड़ा मच्योर होते हैं, मच्योर या एज आपकी बढ़ती है, तो आपको समझ आ जाता है कि जो लोग भी सिस्टम के साथ जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं या रेग्रेसिव हैं. वो जानते हैं कि दिस इज़ द वे. चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ही बदलेंगी, और आप उसको रातों रात अगर बदलना चाहेंगे तो चीज़ें बस खराब ही होंगी, बेहतर नहीं होंगी. ठीक है. आप खुद क्लास में आपने कभी कोचिंग लिया है? हैव यू टेकन? नहीं, मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी किया है. और अदरवाइज स्कूल में आईआईटी के टाइम आप फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर मैं बोलूं तो मैं काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट हुआ करता था. अगर फ्रंट पे सीट मिले तो मैं फ्रंट पे ही बैठना चाहूँगा. मतलब फ्रंट और बैक बेंच से मेरा समझ ये है कि शायद से कि आप बहुत सिंसियर थे या थोड़ा कैजुअल अप्रोच था आपका. तो सिंसियर तो मैं था. ऐसा नहीं है. फ्रंट बेंच होता है, बैक बेंच होता है. उसमें सिंसियरिटी का कोई लेवल होता ही नहीं है. बट एट दिस क्वेश्चन, एट दिस पॉइंट, आई विल जंप द टॉपिक कम्प्लीटली. आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा डेली यू टॉक टू देम अबाउट द न्यूज़पेपर. लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी प्रेसिंग इशू विच इज़ द beef ban in decision to ban beef in Assam. Can we get a yes or no kind of answer from your end if you are in acceptance of the decision? Do you think it's a good decision? Do you think it's a bad decision? Or your analysis of that decision? देखिए आप ऐसा मत सोचना कि आई एम escaping from being a citizen having an opinion. बट जैसा कि आपको पहले ही मेरा एटीट्यूड समझ आ गया है कि आई एम जनरली प्रो स्टेट एंड प्रो एस्टैब्लिशमेंट.
जब हमने किसी सरकार को चुन करके भेजा है तो यानी कि हमने उनमें फेथ दिखाया है, तो वी आर ट्रस्टिंग देयर सेंसेस, राइट, सेंसिबिलिटीज़। तो अगर वो कोई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं इन जनरल, नो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बीफ, तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट उसके फेवर में ही होता है। क्योंकि देखिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, एक यूनानिमिटी बना पाना नामुमकिन है, बट फैसले तो लेने, अदरवाइज विल बिकम इनडिसाइसिव। तो जो भी इस तरह के फैसले होते हैं मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो उसके लिए फेवर में ही होता है। इसको लेकर के भी मैं कहूँगा कि ठीक है, जैसा कि सरकार ने भी कहा है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी के, तो ये आर्गुमेंट में भी काफ़ी सब्सटेंस है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए अगर बैन किया है तो मुझे लगता है सोच समझ के ही किया होगा। ठीक है, बहुत ही आपने बहुत ही डिप्लोमेटिकली उसको एनकम्पास करके दिया आंसर। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आई हैव माई clear goals, personal goals. I have to personally make changes in the society, make positive contribution, and that will not happen overnight. I remain quite focused with my own work, and for that reason I don't jump into too many things, and that is why I believe in professionals if they are doing their job. So the way cricketers, अब मैं रोहित शर्मा के ऊपर comment करूँ, not a good captain, so that won't be a fair thing to do, because he is Rohit Sharma. Similarly, if there are veteran politicians, so who am I? I mean, look at the background credibility. So if you ask me about my work, I would be more comfortable because I am having more expertise there. Otherwise मेरा पहला इंस्टिंक्ट रहता है कि सही कर रहे होंगे, जब कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। फ्यूचर में ऐसे ही, दिस इज एन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, ठीक है, आप देख रही है, मैं ऐसे ही मैं थोड़ा सा अपोलोजाइज भी करूंगा, मैं टॉपिक्स बड़े जंप कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि द मोमेंट आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू इट इज ओपनिंग अप अ लॉट ऑफ चेंज इन माय ब्रेन ऑफ सॉर्ट्स। क्या आपको कभी आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में कंसिडर किया है? नो, कंसिडर तो नहीं किया है, बट हैविंग सेड दैट मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर समाज को बदलना है, सच में बड़ा परिवर्तन लाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जरिया पॉलिटिक्स ही है। तो ये जो माइंडसेट है मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि पॉलिटिक्स गंदा है और हमें उससे दूर रहना है, इसके अगेंस्ट हूँ। बट पर्सनली आई हैव नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। कोई फंड करने रेडी हो तो? मैंने कहा ना कि मैं काफ़ी खुश हूँ अभी अपने काम से। चलिए ठीक है। और बच्चे जब इतना रिस्पेक्ट देते हैं तो लगता है और क्या चाहिए जीवन में। मैं बोलने वाला था नया वोट बैंक है, वो तो अनटैप्ड वोट बैंक है। चलिए इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। इफ आई कैन हियर 2 cents फ्रॉम योर एंड ऑन दैट, वेयर इज इट हेडिंग? व्हाट इज द नेक्स्ट इलेक्शन रिजल्ट गोइंग टू बी लाइक? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑन इट? देखिए, पॉलिटिक्स मतलब सिर्फ आप इलेक्टोरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल जो हमारे देश का स्ट्रक्चर चल रहा है? दोनों पे थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। दोनों पे बात कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फर्स्ट। देखिए, जो अभी एनडीए की सरकार है, इनके लिए अगला 5 साल जो होगा वो जनता के लिए वापस से एक मौका तो है कि हम भरोसा रख रहे हैं, बट थोड़े प्रश्न भी करेंगे। ये जो सीटें थोड़ी घटी हैं वो हम थोड़े प्रश्न भी करेंगे। तो उन प्रश्नों पे अगर खरे उतरते हैं, और प्रश्न सरल है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उन प्रश्नों पे खरे उतरेंगे तो अगले बार फिर से और बेहतर ही जाएंगे और 273 का आंकड़ा पार ही कर जाएगा। और मुझे लगता है कि खरे उतरेंगे, क्योंकि आई टोल्ड यू आई बिलीव इन प्रोफेशनल्स। यस। और ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो एक चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ, कम से कम पिछले 10 सालों में। ऐसा नहीं है कि ख़राब चीज़ें नहीं हुई हैं, गलत चीज़ें नहीं हुई हैं। एक चीज़ अच्छी है कि ग्लोबल ऑर्डर में भारत का स्टेचर थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अगर व्लादिमीर पुतिन जी से भी मिलते हैं, रशियन प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं, उनको कहते हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए, तो ही ऑल्सो लिसन्स। तो मुझे लगता है कि भारत का स्टेचर जो है काफ़ी मजबूत हुआ है। इंडियन इकोनॉमी उसके पीछे जिम्मेदार है काफ़ी हद तक। वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट एंड सून टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट। तो चीज़ें हैं, अच्छी हैं,
बट ओवरऑल देखिए, आपको मेरी बातों से डिप्लोमेसी लगेगी, बट मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी हूं। मैं अननेसेसरीली नेगेटिव चीज़ें नहीं देखता जब तक मुझे वो दिखे नहीं। तो कुछ कमियां तो हैं ही, बट कमियां कहाँ नहीं होती। किस देश में या किस घर में, पूरे देश को एक आप घर मान लें, एक परिवार मान लें, तो किस परिवार में प्रॉब्लम्स नहीं है? बट उन प्रॉब्लम्स को दूर करने पे फोकस करना है, ना कि उनको बढ़ा करके डिफरेंसेस को और ज़्यादा वाइडन करना है। तो मुझे लगता है काम ठीक ही चल रहा है और प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल यूथ के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसीलिए तो मैं कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब तक आप ट्रेडिशनल रखोगे, लिमिटेड रखोगे, तब तक वो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही। 200-300 ही तो सीटें हैं ना, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ब्रॉडन क्यों नहीं करते अपने माइंडसेट को? इसीलिए तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी का हम इस डायरेक्शन में बातचीत करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जैसे ही समस्याएं खत्म होंगी, आप देखोगे, आई बिलीव इकोनॉमी is one of the most, if not the most important aspect of our life. I will try and wind up and consolidate the last few questions that we have. If not a teacher, what would you have been? Maybe a sports person. I would like to be. You would have, but that is ideal. You did not ever consider sports as a field, right? You did a corporate job. Yes. Maybe you would have stuck that out. Yes, I could have. But I was never happy, to be honest. That corporate job, from day one, I was very clear, and I don't want to spend my life here. क्या था ऐसे corporate life में? वो अच्छा था, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छा। नेगेटिव आदमी नहीं है, इसीलिए आप नेगेटिव नहीं कहेंगे। ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आप नेगेटिव ढूंढना चाहें तो कहाँ नहीं ढूंढ सकते हैं। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जब मैंने 2 साल काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना सीनियर्स ने सपोर्ट किया। इवन अगर मैं आपको बताऊं, एक बार ही मेरी मुलाकात हुई मुकेश भाई से, मुकेश अंबानी जी से, बट उनका, चूँकि उनका लीडरशिप ऐसा है, वो सबसे ऐसे ही बात करते हैं और मज़े में। अच्छा, तो मतलब वो पूरा माहौल जो है वो रिलैक्स्ड रहता है। अब क्या है पता नहीं, मैं बट बात कर रहा हूँ 12 साल पहले की, तो लगता नहीं था कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। मेरे साथ तो कम से कम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं काफ़ी इन्जॉय करता था। बट यही था, उस टाइम में तो सिविल सर्विसेज का भूत था। और उसके बाद से भी जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया, तब इससे बेहतर क्या होगा? इफ़ नॉट सिविल सर्विसेज, देन व्हाट एल्स कुड बी बेटर देन दिस। बच्चे जब सब इतना रिस्पेक्ट देते हैं, लगता है अंदर से ऑनेस्टली कि यार इतना भी काम नहीं किया है, लेकिन अच्छा तो लगता है। ऐसे इंटरेस्टिंग से आपने रिलायंस में किया, वेर यू आर सेइंग मुकेश Ambani came, who's one of the most influential people. I will not say he's the most wealthy person. He's one of the most influential people in the world. And he comes and says, "Maze mein अच्छे हो, बढ़िया हो." That kind of caretaking is happening for you in such a large corporate. Civil servant को कोई नहीं पूछ रहा, पब्लिक भी गाली ही दे रही है, ऊपर मंत्री भी प्रेशर ही दे रहा है, साथ के पैरेलल वाले भी आपको प्रमोट होने से रोक रहे हैं. And yet you wanted to be in the services. आप बोलेंगे सिद्धार्थ तुम बहुत नेगेटिव हो. नहीं, नेगेटिव की बात नहीं. आप ये भी तो देखिए कि कौन कर क्या रहा है. कॉर्पोरेट में आप एक गलती करेंगे तो क्या होगा? बहुत होगा तो दोबारा वही फाइल बनानी पड़ेगी. हो सकता है कंपनी को 1-2 लाख का नुकसान हो जाए, जितना आपका पे ग्रेड है. अब तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो आई वाज इन द लोएस्ट रंग, तो उसी हिसाब से आपकी गलतियां भी होंगी, क्योंकि आपके काम भी उसी हिसाब से हैं. बट आप जिस तरीके का क्रिटिकल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो अपने आप में भी तो देखिए, तो वहाँ पे दबाव तो होगा ही, बट साथ ही साथ क्या फीलिंग लेकर के आप घर जाएंगे वापस, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप रहें ना रहें, वो सिस्टम रहेगा जो कई सारे जनरेशन्स को आगे सर्व करेगा. अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SM कृष्णा साहब, उनको हम अभी याद कर रहे हैं. जी हाँ. तो उनकी फॉरेन पॉलिसी आज तक डिटरमाइन कर रही हैं भारत के लिए आउटकम्स इन इंटरनेशनल फोरम. एस जयशंकर साहब, इनके फैसले, जब कितने बोल्ड फैसले लिए, जब रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया वेस्ट द्वारा, फिर भी हमने कहा कि वी विल कीप ऑन बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया, नॉट जस्ट कीप ऑन बाइंग, वी विल बाई मल्टीपल टाइम्स. इंडिया इंक्रीज 7 times ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रसिया, एंड दैट वाज आई बिलीव सोल डिसीजन ऑफ एस जयशंकर साहब. रीजन बीइंग क्योंकि उन्होंने उसको डिफेंड किया अलग अलग फोरम्स पे.
यू टॉक ऑफ मोरालिटी, आई टॉक ऑफ हिस्ट्री। तो आप जब उनके काम देखते हैं तो कैसे मोटिवेट नहीं होंगे आप कि इनके फैसले जो हैं भारत के जनरेशन्स को इम्पैक्ट करेंगी। तो आपका काम लेस क्रिटिकल होगा। मैं कॉर्पोरेट जॉब को डिमीन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं कठिन प्रश्नों के जवाब तो कॉर्पोरेट जॉब्स भी इम्पोर्टेंट है। बट आपने कॉर्पोरेट में 2 साल काम किया, आप सर्विसेज के लाइफ के बारे में जानते हैं, क्या हम एक वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी एक कंपैरिजन सुन सकते हैं? डू यू थिंक इट इज इक्वल? एक टाइम था जहां साहब कल्चर वाज वेरी स्ट्रांग। आई थिंक अभी सर्विसेज इतने साहब कल्चर वाला है नहीं क्या? अब तो नहीं है इतना, और कोशिश चल रही है उसी डायरेक्शन में कि उसको कम किया जाए। वो जो रेड टेपिज्म उसके लिए सब कह सकते हैं, कम किया जाए। बट हमारा कॉलोनियल हिस्ट्री है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बनाई ही गई थी साहब के तरीके से, तो वो जाते जाते अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, एक बच्चा जब नया आपके क्लास में ज्वाइन करता है, व्हेन अ स्टूडेंट जॉइन्स योर classroom, walks into it, what is the first introduction that you do to him to gear him up for the next year? Ki this is going to be your year, or this is what you have to look forward to this year. लुक, पहले दिन मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, अच्छा, तो मैं उसको टोन डाउन करने की कोशिश करता हूँ। आई फ्रॉम डे वन आई कीप देम टेलिंग कि तैयारी की शुरुआत करना ये पूरी तैयारी के जर्नी का सबसे सरल हिस्सा है, द ईजीएस्ट थिंग। बट इसी एंथुजियाज्म से अगर आपने तैयारी को कंप्लीट कर दिया तो कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इस एग्ज़ाम में। बट जीवन में कामयाबी की तो गारंटी है। ये बात मैं पहले दिन से अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहले दिन वैसे ही जोश बहुत हाई होता है और ज़्यादा जोश देख करके मुझे घबराहट होती है, क्योंकि इफ़ यू पीक देन ओनली यू कैन डिक्लाइन। तो मैं चाहता हूँ कंसिस्टेंसी का रूल ही है कि आप कभी भी पीक ना करें, तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा आप पैशन में ना आए। तो पहले दिन तो मैं वही माइंडसेट को थोड़ा टोन डाउन करता हूँ, और पहले दिन से आई कीप ऑन टेलिंग देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। and then they gel into your class. Yes, most of them do. Most of them do. Have you had negative feedbacks for you? Why not? क्यों नहीं होंगे? मैं अगर कहूँ कि मेरे लिए आज तक किसी ने कभी कोई नेगेटिव फीडबैक दिया ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ होगा। बता सकते हैं उनके बारे में? देखिए, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपकी सोच बनाती है। और मेरी जो सोच, आज मैं अब 34 साल का एक इंसान हूँ, मेरी सोच एक 22 साल 21 साल के बच्चों के साथ पूरी तरीके से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो बातें मैंने अभी आपको कही ना, ये बातें कई दफ़ा स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती, बिकॉज दे वांट टू हियर स्पीचेस लाइक हाउ इज़ द जोश, हाई सर, दुनिया हिला देंगे, कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में। और उनको वो फीलिंग कभी आती नहीं है। फिर वो मुझसे पूछेंगे, सर मैं 1.5 साल ईमानदारी से तैयारी करूँगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा ना? वो टाइम की बैक कैलकुलेशन से आपसे बात करते हैं मतलब? मैं कहता हूँ हो जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं तो काम पे फोकस करता हूँ, आउटकम तो हमारे बस में है ही नहीं। देखिए, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ एक फिलॉसफी में कि मनुष्य के अधिकारों की सीमा विकल्पों के चुनाव पर आकर के खत्म हो जाती है, परिणाम पे तो उसका कोई हक है ही नहीं। अच्छा, वाह। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं आज बिलीव करना, मतलब पहले से मानता था, मैं इतना ऐसा कह रहा हूँ, इतनी डीपर थिंकिंग है मेरी। बट आपका जब एज बढ़ता है तो आप चीज़ें देखते हैं ना कि बहुत बार आप जो चीज़ नहीं चाहते हैं इतना ईमानदारी से वो भी मिल जाता है, और बहुत बार आप पूरी शिद्दत से भी कोशिश करते हो तो कभी कभार चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अपनी सारी ईमानदारी से काम करने के बाद कुछ छोड़ देना चाहिए, जिस भी फॉर्म में आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। अब 21-22 साल के बच्चों से आप ये उम्मीद करोगे कि वो ये बात समझे, अप्रिसिएट करे, नॉट नेसेसरी। तो उसको ये बातें कई बार निगेटिव भी लगती हैं कि ये मैं इनके पास मोटिवेशन के लिए गया था और इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। डू यू थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड दिस? राइट। नाउ as we try to wrap up this conversation, I have one last question for you.
आपके गुवाहाटी का नाता यही है कि यू वर आउटसाइड, समवन सेड कम बी अ टीचर हियर. व्हाट अदर कनेक्शन डू यू हैव टू गुवाहाटी? देखिए अब तो मुझे लगता है कि मैं यहीं का हूँ, यही कहूँ, ठीक है. क्योंकि जितना रिस्पेक्ट मिलता है यहाँ पे, मैंने इस कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में भी कहा कि मुझे अंदर से लगता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से पूरे दिल खोल करके बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं, अब तो लगता है कि थोड़ा फिल्मी डायलॉग मार ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं, जन्मों का नाता है. तो है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है सर, फॉर योर टाइम एंड योर विजडम एंड योर वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, आई एम वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच आने के लिए. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी. For everyone who stuck to watching this end of the episode, thank you so much for tuning in to this episode of Guwahati Connection. Our guest today was fantastic, and if you know him, if you've seen him, if you study with him, be sure to leave a lot of comments, a lot of hearts, a lot of feedback for him that you may have. सत्यजीत सर के लिए एक बढ़िया लाइक तो बनता है वीडियो में, ठीक है ना? I'll see you soon on the very next episode. Until then, cheers.